Hello students and welcome back to my value education class. Hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to start with our 6th chapter, that is being faithful. So what do you mean by the word faithful? Yes, faithful means loyal and trustworthy. So in Hindi we can say that faithful means वफ़ादार एंड वी शुड ऑल हैव द क्वालिटी ऑफ फेथफुलनेस. हम सब के अंदर ये फेथफुलनेस वाली क्वालिटी होनी चाहिए. एंड दिस चैप्टर इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 stories that will give focus to the importance of loyalty and faithfulness. So let's start with our first story, The Bat, the Beast and the Bird. Long ago, a battle broke out between the beast of the ground and the birds in the sky. A cowardice bat watched the fight to see which side would win. As soon as he saw the beasts winning, he decided to hide his wings and find the king lion. Your Majesty, since I resemble a land creature like a mouse, I would like to be in your team. Oh yes, I can see that. From now on, Bat, you are one of us, haha. Yeah, welcome, Bat, welcome. Before long, the birds of the sky began to gain control. Now the worried bat decided he needed to visit with the king of the birds, the eagle. Your Majesty, I too have wings of a bird. Please let me join you. Oh, all right, Bat. From now on, you are a bird. Yeah, welcome, Bat, to our team. The fight between the beast and the birds endlessly continued. And the cowardice bat continued to go back and forth, changing his position. One day, the battle was finally over, and there was a peace in the forest. King Eagle, from now on, the beast and the birds are one. Yes, King Lion, we are now one family. Yay. Everyone was happy. The cowardice bat, however, wasn't welcomed by either side. Everyone was angry with that. We don't want anything to do with your kind. Leave the forest. Leave the forest! Leave the forest! Get lost. Get away from here, bat. After the bat was shunned by the king, he had no choice but to fly off to dark and lonely cave. Since then, the bat lives in fear of the beasts and the birds, hiding in the dark towers and deserted ruins, flying out only at night. It was a punishment for being unfaithful. The bat could not have many friends and had to live in the dark. Now, the second story is Panna, the faithful nurse. Panna Dai was a nurse. She was in the service of Maharana Sangram Singh. Panna Dai एक नर्स थी जो सर्विस करती थी इनके अंडर में, महाराणा संग्राम सिंह के अंडर में.
Maharana Sangram Singh fought many battles during the second and third decades of the 16th century. In one of these battles, Maharana died. His elder son also died in other battle. उनका बड़ा बेटा और वो battles में मारे गए. So the throne was taken by Vikramaditya. He was 14 years of age when the ascended the throne. Ascended the throne means to become a king. तो ये विक्रमादित्य जो है, throne means वो कुर्सी जिस पे राजा और रानी बैठा करते हैं उसको throne बोलते हैं. ठीक, तो वो 14 years की एज से वो throne को संभाल रहे थे. पन्ना दाई was responsible for taking care of महाराणा संग्राम सिंह younger son. उदय, महाराणा संग्राम सिंह के छोटे बेटे जिनका नाम उदय था, उनकी देखभाल करने का इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. शी यूज टू टेक केयर ऑफ हिम अलॉन्ग विद हर ओन सन चंदन. वो अपने बेटे चंदन के साथ साथ उदय का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी. ओके, वो चंदन उदय की ही एज का था. बोथ द किड्स यूज टू प्ले टुगेदर. दोनों बच्चे साथ में खेलते थे. शी रिमेन्ड फेथफुल टू हर मास्टर एंड टू गुड केयर ऑफ प्रिंस उदय. उसने अपने मास्टर यानी कि महाराणा संग्राम सिंह के लिए काफ़ी फेथफुल थी. वो फेथफुल रही अपने मास्टर के लिए. ओके, और उसने बहुत अच्छे से प्रिंस उदय का ख्याल रखा. विक्रमादित्य वॉज इल टेम्पर्ड एंड एरोगेंट. विक्रमादित्य बहुत ही थोड़ा गुस्से वाला था, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था. नो वन इन हिज कोर्ट लाइक्ड हिम. कोई भी उसको राज्य में पसंद नहीं करता था. वन डे बिकॉज ऑफ हिज इल टेम्पर्ड all the nobles decided to rebel and plans were made to arrest विक्रमादित्य. एक दिन राज्य के सभी नोबल पर्सन ने बहुत गुस्सा हुए इसके इसी नेचर की वजह से, और उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी बात कोई नहीं मानेगा. इस मतलब बागी, रिबल मतलब बागी हो जाना, मतलब अ पर्सन हु रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स. ओके, एंड प्लान्स बनाया इसको अरेस्ट करने के लिए. The only heir elect to the throne was उदय सिंह. इकलौता वारिस था जो संभाल सके पूरे राज्य को, वो था उदय सिंह, जो महाराणा संग्राम सिंह का छोटा बेटा, जो अभी बहुत छोटा था. He was too young to ascend the throne. Thus, a distinct cousin of Vikramaditya, Banveer, was appointed to act as regent. तो ये विक्रमादित्य के एक कज़न को बुलाया गया जिसका नाम था बनवीर, और उसको अपॉइंट कर दिया गया एज रिजेंट. रिजेंट मीन्स समवन हु रूल्स ड्यूरिंग द एब्सेंस और इनकैपेसिटी ऑफ द किंग. बनवीर वो उसको अपॉइंट किया गया एज अ रिजेंट. रिजेंट मतलब होता है वो इंसान जो इन द एब्सेंस ऑफ किंग के एब्सेंस में वो रूल करे, सारे किंग वाले काम करे. ही किल्ड विक्रमादित्य. उसने विक्रमादित्य को मार दिया. क्यों मार दिया? बिकॉज बनबीर लॉन्ग्ड टू असेंड द थ्रोन. उसके अंदर खोट आ गया था, उसको राज्य संभालने का लालच आ गया था, तो उसने विक्रमादित्य को मार डाला. फिर उसने जो है उदय को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा, असैसिन्स. ही ऑल्सो सेंट असैसिन्स टू किल उदय, क्योंकि उदय ही अब इकलौता वारिस रह गया था उस थ्रोन को संभालने के लिए. मतलब जब वो बड़ा हो जाता तो फिर उसको राजा बना दिया जाता. लेकिन ये बनबीर ने क्या किया? असैसिन्स को भेजा उदय को मारने के लिए. अब असैसिन्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु मर्डर इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस. ओके, तो ये सारे राज्य को हड़पने के लिए उसने उदय को मारने के लिए असैसिन्स को भेजा, मतलब मर्डरर्स को भेजा. पन्ना दाई हैड जस्ट पुट बोथ ऑफ द बॉयज़ टू स्लीप. अपने बेटे को और उदय को सुला दिया. अभी जस्ट उन्होंने सुलाया ही था
कि एक सर्वेंट उसके पास आया, पन्ना दाई के पास, और उन्होंने बोला, उस सर्वेंट ने बोला, इन्फॉर्म किया कि असैसिन्स आने वाले हैं जो ये प्रिंस उदय को मार देंगे। पन्ना दाई वॉज अ लॉयल नर्स मेड। पन्ना दाई बहुत ही वफ़ादार नर्स थी, बहुत वफ़ादार सर्वेंट थी महाराणा सिंह की, ठीक है। शी न्यू दैट द फ्यूचर ऑफ द किंगडम डिपेंड ऑन द लिटिल प्रिंस एंड ही मस्ट बी सेव्ड। वो जानती थी कि इस राज्य का भविष्य ये छोटा बच्चा जो है, लिटिल प्रिंस, यही इसी पे डिपेंड करता है, तो इस प्रिंस को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। शी कॉल्ड अ फेथफुल सर्वेंट एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू टेक स्लीपिंग उदय to nearby river bank where she would join later. She then put royal clothes on her own sleeping son and covered him with a blanket. तो पन्ना दाई ने क्या किया, एक फेथफुल सर्वेंट को बुलाया और उसको ऑर्डर किया कि ये उदय को लेकर जाओ नदी के किनारे, मैं वहाँ पे तुमको मिलूँगी। और फिर उसने क्या किया, उन सर्वेंट को सोते हुए उदय को भेजकर उसने अपने ही बेटे यानी अपने ही चंदन को रॉयल कपड़ों में लपेट कर रख दिया, ठीक है। उसने मतलब क्या किया कि अब प्रिंस की जगह अपने बेटे को रख दिया। इन अ फ्यू मोमेंट assassins burst into the room looking for Uday. She pointed toward the bed and watched in horror, her own son being killed. उसने क्या किया, थोड़ी देर में ही जब असैसिन्स आए तो रूम में आए असैसिन्स मारने के लिए उदय को, तो उसने क्या किया, बेड की तरफ इशारा कर दिया कि वो उदय सो रहा है और अपने ही बेटे को उदय बनाकर उसने रख दिया और असैसिन्स ने उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने मार दिया, ठीक है। हर ओन सन बीइंग किल्ड इन फ्रंट ऑफ हर। बनबीर इन्फॉर्म्ड द कोर्ट अबाउट उदय's डेथ एंड क्लेम्ड द थ्रोन। उसने अपने राज्य में उदय की डेथ के बारे में बता दिया कि अब उदय मर चुका है, इसलिए अब ये राज्य पाठ मेरा है, ठीक है। दो पन्ना दाई वॉज इन ग्रेट ग्रीफ। पन्ना दाई बहुत ही दुखी थी, लेकिन तब भी पर भी उसने कुछ ना सोचे समझे शी पैक्ड एंड लेफ्ट फॉर द स्पॉट नियर द रिवर where the servant was waiting for her with young Prince उदय। उसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी अपने बैग्स पैक किए और वो नदी के किनारे पहुंच गई जहां पे वो सर्वेंट वेट कर रहा था प्रिंस उदय के साथ। After many years, the royal nursemaid and Uday returned to the kingdom and after ensuring their safety. फिर कुछ सालों के बाद वो रॉयल नर्समेड यानी कि पन्ना दाई उदय को लेकर किंगडम वापस लौटी और उसने सारी बातें सबको बताई। When the nobles heard this, they proclaimed उदय as their king. जब सारे नोबल पर्सन्स को पता चला ये सारी बातें तो उन्होंने उदय को किंग बना दिया। पन्ना दाई सेव्ड द हेयर ऑफ द थ्रोन ऑफ मेवाड़ एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ हर ओन सन। पन्ना दाई ने वारिस को, इकलौते वारिस को बचा लिया, मेवाड़ के जो राज्य को संभालने वाला था, अपने बेटे की जान देकर, अपने बेटे को सैक्रिफाइस करके उसने प्रिंस उदय की जान बचाई। शी शोड हर लॉयल्टी एंड करेज टू गो बियॉन्ड लिमिट्स टू सेव द ओनली हेयर ऑफ द किंगडम। उसने अपनी लॉयल्टी को शो किया, अपनी हिम्मत को दिखाया, एक सीमा क्रॉस कर दी, लिमिट क्रॉस कर दिया उसने लॉयल्टी को शो करने के लिए कि जो भी किंगडम को इकलौता वारिस है उसको बचाया जा सके, ठीक है। पन्ना दाईज नेम एंड हर डीड्स विल लिव फॉर एवर एज सिंबल ऑफ लॉयल्टी, सैक्रिफाइस एंड फेथफुलनेस। पन्ना दाई का नाम आज भी जाना जाता है उसके इस लॉयल्टी के लिए, इस सैक्रिफाइस और फेथफुलनेस के लिए। ओके, सो होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर ऑफ बीइंग फेथफुल कि हमें कैसे फेथफुल रहना चाहिए। लाइक पन्ना दाई ने हमको
कितना अच्छा एक एग्ज़ाम्पल सेट करके दिया है। और बीस्ट एंड द बर्ड्स वाली स्टोरी में हमने देखा था कि बैट जो कि अनफेथफुल था, ना वो इस टीम में जा रहा था ना वो उस टीम में जा रहा था, जो टीम जीतती थी उस तरफ चला जाता था। तो ये अनफेथफुल रहोगे अगर आप लोग, तो आपका कोई भी फ्रेंड नहीं बनेगा, ठीक है। आपको बैट की तरह बॉयकॉट कर दिया जाएगा और आप अपनी लाइफ अकेले जियोगे, ठीक है। जैसे कि बैट जीता है और इसीलिए वो रात को ही निकलता है, वो ना तो बीस्ट्स के साथ होता है ना तो वो बर्ड्स के साथ होता है, उसको अलग ही कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। सो हम सबको फेथफुल होना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड enjoyed this studying this chapter. Now it's your responsibility to read this chapter once again and do all the exercise related to this chapter. Okay, so thank you students, have a nice day.